So today we are going to begin with the lesson number 10, that is internet. So let's begin with this lesson. So in this lesson we are going to study about the uses of internet. Second is internet terms, and the last one we will talk about web browser. So in what is internet? The internet is like a massive worldwide web of computer. ये क्या बहुत बड़ा worldwide web है आपके computers का. So it's a place where you can find all sorts of information, ways to talk to people. So यहाँ पे आपको हर तरह की information मिल जाती है. You can search on your internet, you will get an n number of things and n number of your answers, and you can talk with your friends on the internet also. It's made up of many networks that connect together. वो किससे बना हुआ होता है? बहुत सारे नेटवर्क से बना हुआ होता है जो कनेक्ट करता है आपको, bringing together millions of businesses, governments, groups, schools and regular people. इनको एक साथ कांटेक्ट में लाता है, कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है. Now, what are the benefits of internet? We have many benefits of the internet. The internet has many uses. बहुत सारे uses है. Some of the uses are explained below. So here are the uses of internet. So first use of the internet is it is used for researching and communicating about various kinds of topic. इसमें आप researches कर सकते हो, communicate कर सकते हो, बहुत सारे topics से related कुछ भी आप search कर सकते हो. It allows you to send and receive message from anybody with an internet connection. तो ये आपको allow करता है. आप मैसेजेस सेंड कर सकते हो अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, फैमिली को, किसी को भी एक इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू. सो इट इज़ यूज इन बैंक फॉर ट्रांजेक्शन्स. आपके बैंक्स में यूज़ होता है ट्रांजेक्शन्स के लिए. आप अपने ऑनलाइन बैंकिंग में भी यूज़ करते हो इसको. इट इज़ यूज फॉर ऑनलाइन शॉपिंग. येस, इंटरनेट ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज़ होता है. It is used to viewing movies and listening to music. इससे आप मूवीज़ व्यू करते हो, म्यूज़िक सुनते हो इंटरनेट के थ्रू. इट इज़ यूज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस. ये किस लिए यूज़फुल है? आपके एजुकेशनल पर्पसेस में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है इंटरनेट. Now move to the next page please. So it is used in accessing sources of entertainment and leisure such as online game, magazines and holidays planning guides. So इसे आप अपने holidays plan कर सकते हो उस पर guides के थ्रू. एंड ये वो आप इसको एंटरटेनमेंट सोर्सेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मूवीज़ देखने के लिए, वीडियो गेम्स खेलने के लिए, मैगजीन्स पढ़ने के लिए. इट इज़ यूज्ड इन एक्सेसिंग अदर कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स एंड हेल्प्स टू एक्सचेंज फाइल्स. यस, इंटरनेट के थ्रू आप फाइल्स एक्सचेंज कर लेते हो, एक्सेस कर सकते हो और दूसरे कंप्यूटर्स में, मोबाइल फोन्स पे. इट इज़ यूज्ड इन शेयरिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स विद अदर्स इन रियल टाइम. आप एक ही सेम टाइम पे डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हो, एक रियल टाइम में एडिट कर सकते हो. To support the above mentioned uses and other activities, the internet provides a wide variety of services that include www. that is World Wide Web, emails send कर सकते हो, FTP that is File Transfer Protocol, instant messaging, chat rooms, news groups and message boards. Now do you know Wi-Fi is the name of popular wireless technology that provides high speed internet. Yes, जो Wi-Fi होता है आपके homes में होता है, offices में होता है, schools में होता है, everywhere there is Wi-Fi. So आपको क्या प्रोवाइड करता है? ये वायरलेस आपको नेटवर्क प्रोवाइड करता है. इट इज़ अ वायरलेस टेक्नोलॉजी जो आपको फास्टेस्ट हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करता है. नाउ प्रीरिक्विजिट्स फॉर एन इंटरनेट कनेक्शन. क्या क्या चाहिए होता है? मॉडेम, यू नीड मॉडेम, टेलीफोन नेटवर्क कनेक्शन, वेब ब्राउजर एंड इंटरनेट connection. Now internet terms, let's talk about them. Let us understand about some of the common terms associated with the internet. First one is www. that is World Wide Web. It is a collection of interconnected pages. इससे आपके pages जो होते हैं interconnected होते हैं, जिसमें क्या क्या होता है? That contains text, pictures, audios, videos, etc. So various pages are connecting using links and can be accessed through the internet. ये जो pages होते हैं connected किसके थ्रू होते हैं? लिंक्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं. इनको आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं. नाउ वेब पेजेस आर द पेजेस दैट मेक्स अप द वर्ल्ड वाइड वेब. ये क्या है? पेजेस होते हैं जो क्या बनाता है? वर्ल्ड वाइड वेब बनाते हैं. अ वेब पेज is created by using internet language called HTML. yes, जो एक वेब पेज होता है वो किसके थ्रू बनता है? एक इंटरनेट लैंग्वेज के थ्रू बनता है. उसको क्या कहते हैं? HTML कहते हैं. दिस इज hypertext markup language. These pages can be seen or accessed using a web browser. ये आप कब देख सकते हो? जब आप वेब ब्राउजर को एक्सेस कर रहे होते हो, तो आप जब यूज कर सकते हो इनको. दे मे कंटेन टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोज एंड लिंक्स. इन पे लिंक्स भी हो सकता है, पेजेस, पिक्चर्स भी हो सकती है, ऑडियोज भी हो सकती है,
Phrases such as navigating the web or surfing the web are used when you visit on web page followed by the other. ये कब होते हैं? जब आप कुछ भी सर्च कर रहे हो तो इट मीन्स सर्फिंग द वेब, नेविगेट कर रहे हो तो कुछ किसी वेबसाइट पे जा रहे हो तो दैट इज नेविगेटिंग द वेब. A website is a collection of related web pages. एक वेबसाइट क्या है? क्या है? कलेक्शन है किसका? रिलेटिव वेब पेजेस का. Now, an internet service provider, that is ISP, is a company that provides service for accessing or using internet. ये क्या कंपनी है जो आपको क्या प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू आप इंटरनेट को यूज कर सकते हैं? एक्सेस प्रोवाइड कर दिया. इट प्रोवाइड द मीडियम फॉर यूजर्स टू कनेक्ट द इंटरनेट यूजिंग अ कंप्यूटर. ये मीडियम प्रोवाइड करती है यूजर्स को जो कनेक्ट कर जाते हैं इंटरनेट यूज करके कंप्यूटर्स के थ्रू. A browser is a software program which simplifies the presentation and process of exploring world wide वेब. एक ब्राउजर क्या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो सिंप्लीफाई करता है आपकी प्रेजेंटेशन एंड प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरिंग वर्ल्ड वाइड वेब. हाइपरलिंक इज लिंक टू अनदर रिलेटेड वेब पेज. ये लिंक है आपके दूसरे रिलेटेड वेब पेज पे और आप पार्ट ऑफ वेब पेज. URL, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. कहते हैं URL क्या है इस कंपनी का, इस साइट का URL क्या है? सो इज अ वेब एड्रेस. हो क्या होता है आपका? वेब एड्रेस होता है फॉर रिसोर्स ऑन द इंटरनेट. It provides a mechanism to retrieve the resource. ये mechanism provide करता है retrieve करने के लिए आपके resources को. Web pages can be accessed using URL. जो आपके web pages होते हैं आप इनको कैसे access कर सकते हो? URLs को use करके access कर सकते हो. For example, www.history.com is a URL of history channel. ये किसका URL है? आपके history channel का URL है. Now, email, electronic mail is the transmission of messages and files via computer network. ये क्या है आपके? ट्रांसमिशन है आपके मैसेजेस का, फाइल्स का, किसके थ्रू? कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू. इट इज़ वन ऑफ द ओरिजिनल सर्विसेज ऑन द इंटरनेट एनेबलिंग साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स वर्किंग on government sponsored projects to communicate via colleagues at other location. emails के थ्रू अपने colleagues से आप messages के थ्रू बात कर सकते हो, कोई notification send कर सकते हैं इसके थ्रू आप. some websites provide email services free of charge. कुछ websites होती है आपको free of charge email services provide करती है like Google. Now, FTP, that is File Transfer Protocol, is the protocol that allows users to upload or download files from one other computer on the internet. So, क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है जो आपको प्रोवाइड करता है, यूजर्स को प्रोवाइड करता है डाउनलोड करने के लिए, फाइल्स को अपलोड करने के लिए एक कंप्यूटर से दूसरे इंटरनेट पे from one other computer on the internet. It enables data transfer or exchange of files over internet. इससे आप data transfer कर सकते हो, exchange कर सकते हो files इंटरनेट पे. A chat is a typed conversation that takes place on a computer. ये क्या है? आपका typed conversation है जो कहाँ takes place करता है? आपके कंप्यूटर पे. A chat room is an online forum where people can chat online. एक आपका online forum होता है जहाँ पे people एक दूसरे से chat कर सकते हैं. Instant messaging. IM is an internet communication service that notifies you when one or more people are online. क्या है? आपका एक इंटरनेट कम्युनिकेशन सर्विस जो आपको नोटिफाई करता है कि एक पीपल ऑनलाइन है या नहीं एंड अलाउज यू टू एक्सचेंज मैसेज और फाइल्स और ज्वाइन सा प्राइवेट चैट. आपको अलाउ करता है प्राइवेट चैट ज्वाइन करने के लिए और आप एक दूसरे को मैसेजेस सेंड कर सकते हो. A chat client is a program on your computer that handles chat rooms and instant messaging. ये क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम है चैट क्लाइंट जो आपको हैंडल करता है आपके चैट रूम्स को, इंस्टेंट मैसेजिंग को. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेब ब्राउजर. A web browser allows a user to see and interact with different components of a web page. क्या करता है? अलाउ करता है एक यूजर को इंटरेक्ट करने के लिए डिफरेंट कंप्यूटर से उसके एक वेब पेज के. कॉमन वेब ब्राउजर्स इंक्लूड माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स एंड एप्पल सफारी. यस, जो कॉमन वेब ब्राउजर्स होते हैं आप यूज़ भी कर सकते हो, करे होंगे आपने. ब्राउजर होता है आपका, वेब ब्राउजर होता है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट होता है, आपका गूगल क्रोम होता है, मोजिला फायरफॉक्स होता है एंड एप्पल सफारी होता है आईफोन्स में. सो ओपनिंग अ वेब ब्राउजर. हाउ टू ओपन अ वेब ब्राउजर? कैसे करते हैं? यू हैव टू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होता है, वहाँ पे सर्च करना होता है. टाइप हियर सर्च बॉक्स में गूगल क्रोम और मोजिला या एनीथिंग. एंटर, फिर आपको एंटर की प्रेस करनी है, डबल क्लिक, या फिर आप ये भी कर सकते हो डबल क्लिक भी कर सकते हो टास्क बार पे जो गूगल क्रोम प्रेजेंट होता है. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ वेब ब्राउजर. क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं एक वेब ब्राउजर के? बैक. टू गो बैक टू द प्रीवियस पेज वी क्लिक ऑन दिस बटन. जब हमें वापस जाना होता है प्रीवियस पेज पे हम बैक बटन पे क्लिक करते हैं. फॉरवर्ड.
To move forward to the next page, this button is clicked. जब हमें किसी आगे पेज पे जाना होता है तो हम फॉरवर्ड पे क्लिक करते हैं. Reload, this option allows a user to reload the current web page. ये क्या करता है, आपके करंट वेब पेज को रिलोड कर देता है, फिर से लोड कर देता है. बुकमार्क, इट सेव्स अ URL एड्रेस टू रीविजिट इन फ्यूचर. ये जो बुकमार्क होता है आपकी URL एड्रेस को सेव करता है, जिससे आप फ्यूचर में विजिट कर सकते हो उस साइट पे. नाउ अ नंबर ऑफ अदर ऑप्शंस आर अवेलेबल इन कस्टमाइज एंड कंट्रोल गूगल. बहुत सारे नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कस्टमाइज एंड गूगल पे. So this option is for back, this is for forward, and this circle is for reload. Now this is a bookmark option and this is a customize and control Google Chrome drop down list होती है आपकी. here address bar, you can find the address bar below the title bar. ये कहाँ होता है, टाइटल बार के नीचे होता है. For visiting a website, you have to write its address URL here in the address bar. जब आपको कोई वेबसाइट विजिट करनी होती है, आपको यहाँ पे URL एड्रेस लिखना होता है एड्रेस बार में. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a fantastic day.